चिट्ठी दिए बांग्लार राजवंशी माएदेर भाईदेर बोलছে बांग्लादेशी। तो रोहिंग्या का बंगाल में आना सवाल ही पैदा नहीं होता अगर ये 4 राज्य चोर जबरदस्ती उनको घुसा के बंगाल ना भेजे। तो দিল্লিতে পাঠিয়েছে দেশ চালানোর দায়িত্বে, তারাই বাংলার মানুষকে এবং সেই রাজবংশী মায়েদের ভাইদের বাংলাদেশি বলছে। বাংলা থেকে যারা এসছে তারা কেউ ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পাবে না। কে বলছে? অমিত শাহ বলছে। তারপর বিজেপি সিএ ক্যাম্প খুলছে। ওদের নিজের এমএলএরাই তো প্রতিবাদ করেছে। যারা এই ক্যাম্প তো আসামে হয়েছিল, যারা ওই ক্যাম্পে নাম লিখিয়েছে তাদের সব নাগরিকত্ব গেছে। इलेक्शन के बगैर, कोई डिस्कशन के बगैर इलेक्शन कमीशन ने एक एसआईआर अनाउंस कर दिया। ये दिखाता है और दर्शाता है कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है। कहीं ক্যাম্পের সংখ্যা গত কয়েকদিন ধরে বাড়ানো হচ্ছে। এটা ছিল হচ্ছে ঠাকুরবাড়ির দিকে, নর্থ বেঙ্গলে নিয়ে চলে গেছে, আলিপুরদুয়ারেও করেছে। কোথাও মনে হচ্ছে যে কোচবিহার হেরে যাওয়ার পর রাজবংশী ভোটের যেহেতু ফ্যাক্টর আছে, তাই ওখানে এরকমভাবে ক্যাম্প করে টানার চেষ্টা হচ্ছে। দেখুন, আপনারা কোচবিহারের ক্ষেত্রে বা উত্তরের যে জেলাগুলো রয়েছে, বিশেষ করে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কুচবিহার, আপনারা দেখেছেন যে আসামের কোনো এখতিয়ার বাংলায় নেই, সেই আসামের ফরেন ট্রাইব্যুনাল চিঠি দিয়ে বাংলার রাজবংশী মায়েদের ভাইদের বলছে বাংলাদেশি। যারা জন্মের পর জন্ম, প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাংলায় থেকেছে, রয়েছে, যাদের ঘর বাড়ি জমি সব বাংলায়, যাদের কোনো এখতিয়ার নেই, ম্যান্ডেট নেই এই মাটিতে, সেই আসামের ফরেন ট্রাইব্যুনাল চিঠি দিয়ে রাজবংশীদের বলছে বাংলাদেশি। আর সেই বিজেপি সেই আসামের সরকারকে শিক্ষা না দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করছে তার রাজ্যে এসআইআর না করে। মানুষ দেখুক যে উত্তরের মানুষরা এক বুক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল। বিধানসভাও তারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছে 21 সালে, 24-এও প্রায় ওই 2টো আসন জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার বিজেপি জিতেছে। যাদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে দিল্লিতে পাঠিয়েছে দেশ চালানোর দায়িত্বে, তারাই বাংলার মানুষকে এবং সেই রাজবংশী মায়েদের ভাইদের বাংলাদেশি বলছে। তারা দেখুক এবং বিপদে আপদে তাদের পাশে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়িয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা দাঁড়িয়েছে, বিজেপি নেতাদের ঠিকই খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর যদি ক্যাম্প তাদের করতেই হতো, এই যে আপনি বলছেন এখন সিএ ক্যাম্পের সংখ্যা বাড়াচ্ছে, অমিত শাহ আন্ডারটেকিং দিক না, যারা ক্যাম্পে এসে অ্যাপিল করবে সবাইকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে এবং কোন রকম কোনো হেনস্থা কাউকে ফেস করতে হবে না, আন্ডারটেকিং দিক। যারা এই ক্যাম্প তো আসামে হয়েছিল, যারা ওই ক্যাম্পে নাম লিখিয়েছে তাদের সব নাগরিকত্ব গেছে। অমিত শাহ নিজে বলছে যারা এই দেশে জন্মায়নি তারা ভোট দিতে পারবেন। এটা আমি বলছি না, আপনাদের কানে শুনতে হবে না, আপনারা চোখে দেখুন। আমি বাংলার মানুষকে করজোড় করে অ্যাপিল করছি, আবেদন জানাচ্ছি যে কানে না শুনে চোখে দেখুন। গতকাল একটা সাংবাদিক সম্মেলনে একটা সাক্ষাৎকারে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে যারা দেশে জন্মায়নি তারা দেশের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার কোনো সুযোগ পাবে না। তার মানে ওপার বাংলা থেকে যারা এসছে তারা কেউ ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পাবে না। কে বলছে? অমিত শাহ বলছে। তারপর বিজেপি সিএ ক্যাম্প খুলছে। ওদের নিজের এমএলএরাই তো প্রতিবাদ করেছে, সব বিভিন্ন গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসছে। আপনি আমায় প্রশ্ন করছেন কি? বিজেপির যারা মতুয়া সমাজের প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি রয়েছে, পদাধিকারী রয়েছে, তারা বিজেপিকে বয়কট করছে, আর আপনি প্রশ্ন করছেন আমাকে? বিজেপি আগে তাদের কনভিন্স করুক না। শান্তনু ঠাকুর, সুব্রত ঠাকুরকে কনভিন্স করতে পারছে না, সে মতুয়া সম্প্রদায়কে কনভিন্স করবে? এই প্রশ্নটা আমাকে না করে যারা বিজেপির পদাধিকারী এবং যারা জনপ্রতিনিধি, যারা বিজেপির এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসছে, আপনারা তাদেরকে করুন। सर, अगले 3 महीने एसआईआर चलेगा, कल से शुरू होगा, बट देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी एज फार एज बीएलओ ड्यूटीज आर कंसर्न। एक मेजर चंक है जो टीचर्स है, तो अगले 3 महीने क्या शिक्षा व्यवस्था जो है अफेक्ट हो सकती है? मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोई आलोचना, कोई इंटरैक्शन के बगैर, कोई डिस्कशन के बगैर इलेक्शन कमीशन ने एक एसआईआर अनाउंस कर दिया। ये दिखाता है और दर्शाता है कि चुनाव आयोग
अपना काम नहीं कर रहे, कहीं बीजेपी के थ्रू प्रेशराइज्ड हो रहे। आपको अगर एसआईआर करना था, पिछला बार जब एसआईआर हुआ था 2002 में, तो 2 साल लगा था। ये मैं फिर से कह रहा हूं सबके लिए कि पिछला बार जब एसआईआर हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहा जा रहा है, वो 2002 में हुआ था, उसके लिए 2 साल लगा। अब वही चुनाव आयोग 2 महीने में करना चाह रहा है। अब 2 साल का काम अगर आप 2 महीने में करना चाह रहे हैं, तो आपके पास कोई रेसिपी होगा या कोई जादू का छड़ी होगा जिसके बल पे आप ये काम कर रहे हो। मैं 4 दिन पहले जब आप सब लोगों से मिला तो मैं पूछा कि क्या जादू का छड़ी और क्या रेसिपी आपके पास है, कि भाई कोई क्लैरिटी नहीं है और 2 साल पहले 2 साल जिस प्रक्रिया को लगता है वो आप 2 महीना में कर रहे हो, इसका क्या रेसिपी है? तो अभी तक वो बोल नहीं पाए। आप अनप्रिपेयर्ड हो। स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपने कोई तरीके से डिस्कशन नहीं किया, बैठा नहीं, इनका सलाह नहीं लिया, कोई सलाह मशवरा के बगैर एसआईआर अनाउंस कर दिया गया। और अगर आपका एसआईआर करने का लक्ष्य और उद्देश्य घुसपैठिया को चुन के निकालना ही है, तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ 8 प्रदेश ऐसा है जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। म्यांमार और बांग्लादेश के साथ नागालैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, मिजोरम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, मणिपुर बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, उधर अरुणाचल ऊपर में है, मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है और बंगाल है। बंगाल को छोड़ के बाकी जो 8 प्रदेश है, बंगाल को छोड़ के बाकी जो 8 प्रदेश है, वो 8 प्रदेश में एक भी प्रदेश में एसआईआर नहीं हो रहा है, वो खाली बंगाल में ही कर रहे हैं। मुझे किसी पत्रकार ने बताया कि बीजेपी का एक नेता उनको बताया कि भाई हमारे यहाँ पे एसआईआर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो कोई मेघालय से रोहिंग्या आता है या मणिपुर से आता है या मेघालय से कोई बांग्लादेशी आता है तो हम लोग पकड़ लेते हैं। भाई अगर नागालैंड या मिजोरम या मणिपुर या अरुणाचल से कोई रोहिंग्या आता है तो आप लोग पकड़ लेते हो, तो बंगाल में रोहिंग्या घुसेगा कैसे? जरा बताना मुझे। इनको देश का मैप भी पता नहीं है। उनको बताइए कि भाई जरा देश का मैप देख लो, नॉर्थ ईस्ट का मैप देख लो, एक बार छोड़ दो। देश का मैप ये दिखाता है कि जो म्यांमार का बॉर्डर है उसमें 4 राज्य ऐसा है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड अरुणाचल, जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। बंगाल म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो रोहिंग्या का बंगाल में आना सवाल ही पैदा नहीं होता अगर ये 4 राज्य जोर जबरदस्ती उनको घुसा के बंगाल ना भेजे तो। और ये प्रदेशों में डबल इंजन सरकार है, या तो एनडीए सरकार है या बीजेपी सरकार है। असम में बीजेपी सरकार है, मेघालय में एनडीए सरकार है, आप मणिपुर में देख लीजिए बीजेपी की सरकार है, यही तो डबल इंजन सरकार है। तो जहां डबल इंजन सरकार है वहां घुसपैठिया घुस रहे। आप ही लोग पत्रकार लोग इस सबने न्यूज किया कि 1 महीना पहले बांग्लादेशी पकड़ा गया त्रिपुरा में, मिजोरम में, तो एसआईआर वहां होना चाहिए। फिर आप बंगाल में करिए, फुर्सत में करिए, साल भर लेके करिए, आराम से करिए। जहां पे 3 महीना 4 महीना में चुनाव घोषणा होने जा रहे हैं और 6 महीना में चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता है, वहां आप 2 महीने में जोर जबरदस्ती बंगाल के लोगों को ह्यूमिलिएट करने के लिए और डराने के लिए, धमकाने के लिए, झुकाने के लिए आप एसआईआर कर रहे हो। भाई ये देश आपका पिताजी का जागीर नहीं है कि जब मन करे 130 करोड़ लोग को 500 रुपया लेके लाइन में खड़ा करवा दे, जब कहे बोल दे आधार वैलिड है, जब कहे बोल दे इनवैलिड है, कभी बोल दे भाई इलेक्शन आईडी वैलिड है, कभी बोल दे इनवैलिड है। भाई इसी बीजेपी का सरकार ने 2500 करोड़ रुपया उठाया आधार और पैन कार्ड लिंक करने के लिए, आप सबको पता होगा, याद होगा 2 साल पहले 1,000 रुपया पेनल्टी लिया गरीबों से। जरा वो पैसा वापस करिए आज लोगों को। 2500 करोड़ रुपया उठाया। हमारा सरकार गरीबों को 1000 रुपया लक्ष्मी भंडार पे दे रहे हैं और मोदी जी का सरकार वही 1000 रुपया गरीबों से आधार और पैन कार्ड लिंक करने का नाम पे लेके गया है। और आज कह रहे हैं आधार का कोई वैलिडिटी है ही नहीं, आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप। भाई आप तय करेंगे क्या? আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।